دوستوں آج ماہ رمضان المبارک کی 13 تاریخ دوسرے منگل کا دن آ چکا ہے اور کہتے ہیں جو شخص رمضان المبارک کے دوسرے منگل کو یہ تسبیح صرف 3 بار پڑھتا ہے، صرف 3 بار اس عمل کو کرتا ہے، اللہ پاک پورے سال کے دن پھیر دیتے ہیں، اس کے سارے نصیب کھل جاتے ہیں۔ اللہ والوں، ماہ رمضان کا یہ دوسرا منگل کا دن ہے، یہ دوسرا منگل کا دن ہے، فضیلت اور برکت والا دن ہے۔ یہ کوئی عام منگل نہیں، یہ دولت سے بھرا ہوا منگل ہے اور ماہ رمضان کا دوسرا منگل کا دن ہے۔ اللہ والوں، جب بھی ماہ رمضان میں منگل کا دن آتا ہے تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور آج ماہ رمضان کی 13 تاریخ ہے اور دوسرا منگل کا دن ہے۔ میں اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ صرف 3 بار اس عمل کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لو۔ آپ کی 3000 حاجتیں بھی ہوں تو وہ بھی قبول و منظور ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اللہ والوں، آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے، ان کا نصیب بھی بدل جائے گا۔ اللہ والوں، اس وظیفے کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ رمضان المبارک کے دوسرے منگل کو ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، ایسی زندگی جس میں تنگ دستیاں، غربت، فاقے، بھوک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، تو رمضان المبارک کے دوسرے منگل کے دن اس تسبیح کو صرف 3 بار پڑھ لینا۔ صرف 3 بار پڑھنے میں کتنا وقت لگے گا؟ آپ کے منہ سے نکلی ہر بات، ہر حاجت، ہر دعا قبول ہو جائے گی، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ اللہ والوں، گھر کے کونے کونے سے غربت کا تنگ دستی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ میں سے جو کوئی مقروض ہے، قرض دار ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ قرض ایک ایسی بری بلا ہے کہ جس کے ساتھ قرض چمٹ جاتا ہے تو پھر قبر تک ساتھ نہیں چھوڑتا، لیکن جب کوئی بندہ رب سے مانگتا ہے پھر غیب سے ایسی مدد آتی ہے کہ کروڑوں کا قرض بھی کب اور کیسے اترا بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ اسی طرح اگر میری بہنیں اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں، میری وہ بہنیں جن کی شادیاں ابھی تک نہیں ہوئی، جن کے رشتے ابھی تک نہیں جڑے، میری ان تمام بیٹیوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ وہ اس تسبیح کو صرف 3 بار پڑھیں، لازمی اس عمل کو صرف 3 بار پڑھیں۔ اللہ والوں، میری بہنوں کا نصیب بدل جائے گا۔ اللہ والوں، نصیب بدل جائے گا، تقدیر بدل جائے گی، تقدیر سنور جائے گی۔ حتیٰ کہ میری وہ بہنیں جن کے رشتہ ہو گیا ہے، جو اپنی سسرال میں شادی کے بعد، نکاح کے بعد جا چکی ہیں اور سسرال میں ان کا جینا محال ہے، یا پھر ان کی عزت وہاں پر بہت ہی کم ہے، ان کو رسپیکٹ نہیں دی جاتی، جو ان کا مقام اور محبت ہے وہ ان کو نہیں مل رہی، تو وہ بھی اس تسبیح کو پڑھیں۔ انشاءاللہ ان کے جو ہے وہ سسرال میں ان کا اکرام، ان کی عزت اور احترام بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ شوہر توجہ نہیں دے رہا، شوہر کے دل میں تڑپنے والی محبت پیدا کرنے والا دنیا کا سب سے تیز ترین عمل صرف 3 بار پڑھنا ہے، دوسرے منگل کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو، آج چاند کو گھرن بھی لگے گا، یہ بات ذہن میں رہے، اس بات کو مت بھولیے گا، چاند کو گھرن بھی لگے گا، اور اس کی ویڈیو میں نے اپلوڈ کر دی ہے، لازمی اس ویڈیو کو بھی دیکھیں تاکہ اللہ رب العالمین آپ پر اپنی نظر کرم اور نظر رحمت فرمائے، کیونکہ یہ وقت ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا ہے، یہ وقت ایک دوسرے کی مدد کرنے کا ہے۔ اور آج جو تسبیح آپ کو بتاؤں گا صرف 3 بار پڑھیے گا، صرف 3 بار اس عمل کو کریے گا۔ میری وہ بہنیں جو جوان ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، آپ میں سے وہ بیٹیاں خود پڑھ لیں تو بہترین ہے، نہیں تو ماں باپ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صرف 3 بار پڑھنا ہے، پڑھتے ہی بہترین رشتوں کے اسباب پیدا ہو جائیں گے، اور وہ رشتہ جس کے لیے آپ کئی سالوں سے پریشان بیٹھے ہیں، وہ رشتہ بھی خود چل کر آپ کے گھر تک آئے گا۔ اور میری وہ بہنیں جو سسرال میں پریشان ہیں، وہ اس عمل کو کسی میٹھی چیز پہ پڑھیں۔ کوئی میٹھی چیز ہے، جیسے چائے بنا رہی ہے نا، اب وہ پریشان ہو جائیں گی کہ کھیر بنانی ہے ہمیں، نہیں، اتنی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ نارمل جو چائے بناتی ہے نا، اس پر بھی آپ لوگ اس عمل کو پڑھ کے دم کر دیں، پھونک مار دیں، اور اس چائے کو اپنے جو سسرال میں ہیں آپ وہاں پر سب کو پلائیں۔ انشاءاللہ تڑپنے والی محبت سب کے دل میں بیدار ہو جائے گی، سب آپ کی عزت کریں گے، احترام کریں گے۔ یہ وہ تسبیح ہے۔ اور شوہر کے دل میں اگر تڑپنے والی محبت پیدا کرنی ہے تو کسی سفید چیز پہ، انڈے کے اوپر پڑھ لیں، وہ بھی سفید ہوتا ہے، بڑا مہلک عمل ہے، انڈے پر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ابھی رمضان چل رہے ہیں تو انڈے تو نہیں کھا پاتے ناشتے میں، ناشتہ تو ہوتا ہی نہیں ہے،
सहरी होती है या तो अफ्तारी होती है, तो कोशिश करें कि दूध अगर हो या कुछ खीर हो, सफ़ेद चीज़ हो, उस पर दम कर दें, चीनी पे दम करके डायरेक्ट चीनी खिला दें। इस तरीके से भी ये अमल हो जाता है। नहीं तो दूध वगैरह जो ड्राई दूध होता है, पाउडर वाला दूध होता है, उस पर दम करके वो खिला दें। इस तरीके से कुछ कर दिएगा, सफ़ेद चीज़ पे करके खिलाइएगा अपने शोहरों को। यकीन करें तड़पने वाली मोहब्बत पैदा हो जाएगी, आपका एहतराम भी करेंगे, खुद भी करेंगे और अपने घर वालों से भी करवाएंगे। ये वो तस्बीह है, ये मोजज़ाती अमल है अल्लाह वालों। और ये रमज़ान का पूरा महीना ही आप जानते हैं रहमतों बरकतों से भरा हुआ है। हर लम्हे में रहमतें बरकतें हैं, हर लम्हे में अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतें इनामात मूसलाधार बारिश की तरह बरस रही है। तो लिहाजा आज ये तस्बीह सिर्फ 3 बार पढ़नी है, सिर्फ 3 बार इस अमल को पढ़ना है। आप दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हैं, आप इंडिया से हैं, आप पाकिस्तान से हैं, आप बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के जिस कोने से भी आपका ताल्लुक़ है, जब भी आपके मुल्क में माह रमज़ान की 13 तारीख दूसरे मंगल का दिन आए तो आप ये तस्बीह पढ़ लें। चाहे तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप लोग ये अमल, ये वजीफा पढ़ सकते हैं। वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, जगह की कोई कैद नहीं है, पढ़ना ज़रूर है, छोड़ना नहीं है। इस बात को बस ध्यान में रखिएगा। अब अल्लाह वालों अमल तो कर लिया, पहले दुआ कर लेते हैं, इंशाल्लाह फिर अमल की तरफ चलेंगे। पहले आए हम सब मिलके रब को राज़ी करने की कोशिश करते हैं, एक इज्तिमाई दुआ करते हैं, एक रूहानी दुआ करते हैं, जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी दुआओं को कबूल फरमाए। ए मेरे मालिक मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता। आज माह रमज़ानुल मुबारक की 13 तारीख और दूसरे मंगल का वास्ता, आज चांद को घिरन लग रहा है, आज उसका वास्ता। हम सब की बेबसी को दूर कर दे, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिस्क को वसी और अरीज कर दे, हमारे मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दे, हम सब पर अपनी रहमत की नज़र फरमा। आज जो कोई बेरोजगार है, जो जहां से भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, दुआ कर रहा है, अगर वो बेरोजगार है तो उसको खुशादा रोजगार अता फरमा, हलाल ज़रा अता फरमा, बेहतरीन रोजगार अता फरमा। अगर कोई बीमार है तो मेरे मौला उसको शिफा कुल्ली अता फरमा। उसके घर में अगर कोई बीमार है तो उन सबको शिफा अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, सब पर अपनी खुसूसी नजर करम फरमा। जो मकरूज है उन सब के कर्जों को गैब से अदा फरमा, अपने गैबी खजानों से उनके कर्जों को अदा फरमा दे, कर्ज से निजात अता फरमा। मेरे मौला घर से बेसकूनी बेबरकती का खात्मा फरमा। आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक और जायज़ हाजात को अपनी गैबी खजानों से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। बिलखुसूस मेरी वो बहनें जो अभी तक रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। या रब्बे जुल जलाल, हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा। हम सब पे रहम कर दे, हम सब पर करम कर दे, हम सब की नजरें जो नजरें बद लग गई है उन सब नजरों को काट दे, हासिदीन की हसरत से बचा ले। या रब्बे जुल जलाल, नामाए अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा। तो लिहाजा लाजमी दुआओं में शिरकत किया करें, क्योंकि दुआ मोमिन का हथियार है। और ये माह रमज़ान का महीना ये तमाम महीनों का सरदार है। और जो अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो दौलत का सबसे तेज तरीन वजीफा है। तो खुदा का वास्ता इस अमल को लाजमी पढ़ना, इस वजीफे को छोड़ना नहीं। अब तरीक़ेकार को समात कर लें, किस तरीके से वजीफा पढ़ना है, तरीक़ेकार क्या होंगे। देखें, बावज़ू हो जाए, बावज़ू हो जाए। ये चीनी या चावल जो भी आपने लेना है और पानी का गिलास वो लें, मुसल्ले पर रखें, बावज़ू होकर मुसल्ले पर बैठें, अपनी आंखों को बंद करें और सबसे पहले आप लोगों ने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। अस्तगफार पढ़ने से होगा क्या, हमारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। और जब हमारे तमाम सगीरा और कबीरा गुनाह माफ़ हो जाएंगे तो अल्लाह वालों खुद ब खुद हमारी ज़िंदगियों में इनकलाब आ जाएगा, हमारी ज़िंदगियों में आसानियाँ आ जाएंगी, हमारे रिस्क में बरकत होने लगेगी। और देखें नबी पाक का तरीका क्या था, वो अस्तगफार किस तरीके से करते थे। एक हदीस में आया, आप 70 बार कमो बेश 70 बार आप अस्तगफार करते थे। सही तरीका जो है वो सुन लें।
अस्तगफिरुल्लाह एक बार हो गया। इस तरीके से देखें, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना मैं ये कहता हूँ कि गिनती मत गिनिएगा जब तक कि आपकी आंखों से आंसू ना निकल जाए। आंखों को बंद करें और अपने गुनाहों को सोचें और फिर इस्तगफार करना शुरू कर दें। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपकी आंखों से आंसू भी निकल आएंगे और आपका जिस्म कांप जाएगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपको झुनझुनाहट आ जाएगी, झुरझुरी आ जाएगी। इसका क्या मतलब है? रब की रहमत नाजिल हो गई, अल्लाह पाक ने बख्शिश का इरादा कर लिया। और जब इरादा रब फरमा देता है ना तो आगे की जिंदगी भी आसान हो जाती है। और अल्लाह वालों, ये दिन साल में एक बार आता है, तो लिहाजा लाजमी आप लोगों ने, ये माह रमज़ान का महीना भी बड़ा मुकद्दस महीना है, तो लाजमी इस अमल को करें। और ये तरतीब होनी चाहिए, पहले इस्तगफार करें। इस्तगफार आप लोगों ने कर लिया, वैसे 70 बार करना होता है कम से कम, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि गिनती मत गिनिएगा, बस जब तक कि रोना ना आए, रोना आना शुरू हो जाए फिर इस्तगफार छोड़ दें। और आप लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, दुरूद ताज, दुरूद तुंजिना, दुरूद कादरिया, कोई सा भी पढ़ लें। लेकिन मैं ये कहता हूँ जो कुरान में आया है दुरूद इब्राहिमी, जो नमाज वाला दुरूद है, वो पढ़िएगा। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। देखें, ये माह रमजान का दूसरा मंगल है और 13 तारीख है, आज चांद को घिरन भी लगेगा, तो लिहाजा अपनी हिफाजत भी करना जरूरी है। चैनल पर जो वीडियो अपलोड है उसको भी देखें, क्योंकि आज का दिन हम पर बड़े मनफी असरात छोड़ कर जाएगा। तो लिहाजा इस अमल को ध्यान से समझें, इस वजीफे को पढ़ें, और जो वीडियो चांद घिरन की मैंने चैनल पर अपलोड करी हुई है उसको भी देखें और उसको दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को बेशक ना करें, लेकिन उस वीडियो को लाजमी दूसरों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि उस वीडियो में मैंने बहुत सारे राज आपको बताए हैं। वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तो इंशाअल्लाह वो तमाम राज, वो तमाम अल्लाह पाक की निशानियां जो कि क़यामत की हैं, जो कि जंगे अजीम की हैं, आलमी जंग की हैं, तीसरी सबसे बड़ी जंग है, अल्लाह वालों, वो सब बातें मैंने उसके अंदर बताई हैं। तो लिहाजा उस वीडियो को भी देखें। और आज जो अमल आपको दूंगा ये बहुत ही खास है, तो लिहाजा इस वजीफे को आपने आज ही पढ़ना है। किसी भी मकसद के लिए पढ़ सकते हैं, रिस्क के लिए पढ़ सकते हैं, मालो दौलत के लिए पढ़ सकते हैं, कामयाबी के लिए पढ़ सकते हैं, पसंद की शादी के लिए भी पढ़ सकते हैं। बस आज माह रमजान की 13 तारीख और दूसरे मंगल को आपने ये तस्बीह पढ़नी है। अब अपने खास मकसद को जहन में रखें और फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब आप लोगों ने पहले नंबर पे क्या करना है? आप लोगों ने पहले नंबर पर या हय्यु या कय्यूम को पढ़ना है। अल्लाह वालों, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के 2 इसमें आज़म हैं। सहाबाई किराम ने जब तहकीक करी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के कौन सी सिफाती नाम सबसे ज्यादा फायदेमंद है, तो तहकीक के बाद साबित हुआ या हय्यु या कय्यूम ये 2 ऐसे इसमें आज़म हैं कि जब भी इनको पढ़कर अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगा जाए तो अल्लाह पाक तकदीर के बंद दरवाजों को खोल देता है। अब या हय्यु या कय्यूम को किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिज़ा कीजिएगा। या हय्यु या कय्यूम, इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये एक बार हो गया। या हय्यु या कय्यूम, इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये फिर 2 बार हो गया। या हय्यु या कय्यूम, इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये फिर 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या हय्यु या कय्यूम को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ 3 बार, सिर्फ 3 बार आपने या हय्यु या कय्यूम को पढ़ना है। या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस भी इस तरह से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। सिर्फ 3 बार पढ़ना है, 3 टाइम्स पढ़ना है। या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, ये नबी पाक का बताया हुआ अमल है। माह रमजान के दूसरे मंगल को पढ़ना है, सिर्फ 3 बार पढ़ना है। फिर फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो लोहे कुरानी का अमल है। आप लोगों ने दूसरे नंबर पर यासीन और अलिफ लाम मीम को पढ़ना है। अल्लाह वालों, यासीन पूरी सूरह मुबारका नहीं पढ़नी, सिर्फ ये 2 लफ्ज पढ़ने हैं, या और सीन, और 3 लफ्ज अलिफ लाम मीम, यानी टोटल 5 लफ्ज आप लोगों ने पढ़ने हैं। यासीन और अलिफ लाम मीम को आप लोगों ने मिलाकर पढ़ना है। लेकिन पढ़ना किस तरीके से है ये जरा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा। यासीन और अलिफ लाम मीम इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये एक बार हो गया।
यासीन अलिफ लाम मीम, ये दोनों को मिलाकर पढ़ा तो फिर ये 2 बार हो गया। यासीन और अलिफ लाम मीम, इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो फिर ये 3 बार हो गया। अल्लाह वालों, इस तरीके से आप लोगों ने लोहे कुरानी को, इन दोनों नामों को मिलाकर पढ़ना है और सिर्फ 7 मरतबा 7 टाइम्स आप लोगों ने पढ़ना है। अल्लाह वालों, 7 मरतबा पढ़ने के मायने 7 बार ही पढ़ेंगे, ना 6 ना 8, ज्यादा नहीं पढ़ना, सिर्फ 7 बार पढ़ना है। और लोहे कुरानी आप लोगों ने आम तौर पर लोगों के घरों के ऊपर लटकी हुई या लिखी हुई देखी होगी, और बाज दुकानों पर भी आपने देखी होगी, वो लोग हुसूल बरकत के लिए लगाते हैं। इसकी वजह यह है, इसके मायने अल्लाह रब्बुल आलमीन और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके अलावा कोई नहीं जानता कि इन लोहे कुरानी के मायने क्या हैं, इन आयत के तर्जुमा क्या है। तो लिहाजा आप लोग सिर्फ और सिर्फ यासीन और अलिफ लाम मीम को दूसरे नंबर पे पढ़ेंगे। और अब आप लोगों ने तीसरे नंबर पे क्या करना है, आप लोगों ने तीसरे नंबर पे कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत सूरह कौसर पढ़ना है। अल्लाह वालों, सूरह कौसर हर किसी को ज़बानी आती है। सूरह कौसर एक ऐसा मुश्किल कुशा वजीफा है, एक ऐसा नायाब और बाबरकत वजीफा है, दौलत का एक ऐसा बादशाह वजीफा है कि जिसको पढ़ते साथ ही रिस्क और दौलत खुद चलकर आते हैं। अल्लाह वालों, सूरह कौसर कुरान पाक की सबसे छोटी मगर लाडली और ताकतवर तरीन सूरत है। सूरह कौसर पढ़ने से गैब से रिस्क और दौलत का इंतजाम हो जाता है। सूरह कौसर पढ़ने से गैब से रुकावटें बंदिशें टूट जाती हैं, बिगड़े काम संवर जाते हैं, वो जो कई सालों से ना मिल सका। आज सूरह कौसर को सिर्फ और सिर्फ 15 बार पढ़ने से मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि रातों रात आपके तकदीर के बंताले खुल जाए, बेटियां अपने रिश्तों के लिए पढ़ सकती हैं, तलाक की नौबत से बचने के लिए पढ़ सकती हैं, रिश्तों में बंदिशें हैं, कारोबार में बंदिशें हैं, तो सूरह कौसर को सिर्फ 15 बार बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ने की देर है। अल्लाह वालों, सूरह कौसर हर मसले का वाहिद हल है। वो बच्चे, वो बड़े जिनके इम्तिहान हो रहे हैं, इम्तिहान में अच्छी कामयाबी के लिए, इम्तिहान में अच्छे नंबरों के लिए आप ये वजीफा बताए गए तरीके से रात सोने से पहले भी पढ़ सकते हैं। लेकिन आज जो अमल बताऊंगा, आज जो तरीकेकार आपको बताऊंगा, अगर आप लोग उस तरह से इस सूरत को पढ़ते हैं तो मेरा अल्लाह पाक आपके ऊपर रिज़्क़ के तमाम दरवाजों को खोल देगा। आपके ऊपर रहमतें बरकतें झमाझम बारिश के कतरों की तरह बरसना शुरू हो जाएंगी। बस आप लोगों ने इस खास वजीफे को अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से सिर्फ एक बार पढ़ना है। सिर्फ एक बार इस अमल को पढ़कर देखिएगा, आप लोग हैरान हो जाएंगे, आप लोग परेशान हो जाएंगे। इस तरह से आपके लिए रिज़्क़ का बंदोबस्त होगा। अब अल्लाह वालों, सूरह कौसर को किस तरीके से पढ़ना है जरा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर, ये एक बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर, ये 2 बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर, ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने सूरह कौसर को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, सिर्फ 15 बार 15 टाइम्स आप लोगों ने सूरह कौसर पढ़नी है। अब आप लोगों ने आखिर में क्या करना है, आप लोगों ने आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह को पढ़ना है। अल्लाह वालों, अल्हम्दुलिल्लाह के मायने हैं तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं। और ये जो वजीफा है ये आज की रीढ़ की हड्डी है, इसके बगैर ये अमल मुकम्मल हो ही नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह ये वो कलिमात हैं जिनको पढ़ने से अल्लाह पाक राजी हो जाता है। ये रब को राजी करने वाले दुनिया के सबसे बेहतरीन कलिमात हैं जो कि कुरान करीम के आगाज के हैं। अल्लाह वालों, कुरान करीम का जब आगाज होता है तो वो आगाज अल्हम्दुलिल्लाह से ही होता है, और आज का जो अमल है हमारा वो अल्हम्दुलिल्लाह का ही है। अब किस तरीके से पढ़ना है जरा इसको मुलाहिज़ा कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह
یہ 2 بار ہو گیا، الحمدللہ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے الحمدللہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 33 بار 33 ٹائمز آپ لوگوں نے الحمدللہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، الحمدللہ یہ وہ کلمات ہیں جن کو پڑھنے سے ہمارا رزق بڑھتا ہے، کیونکہ رب کی نظر کرم اور نظر رحمت ہم لوگوں کو ملتی ہے، اور جب اللہ پاک کی نظر کرم کسی بندے پر ہو جائے تو پھر اس کی پوری زندگی ہی سنور جاتی ہے۔ اس لیے آپ لوگوں نے آخر میں الحمدللہ پڑھنا ہے، 33 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اب اللہ والو، عمل آپ لوگوں نے کر لیا، وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا۔ ماہ رمضان کی یہ 13 تاریخ دوسرا منگل ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ آج چاند کو گرہن بھی لگے گا، تو اللہ والو دعا اچھے انداز میں مانگیے گا، اور اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے رزق کے لیے، اپنے کاروبار کی جگہ کے لیے، اپنی نوکری کے لیے، آپ سب کے لیے دعا مانگی کہ اللہ پاک کی حفاظت مل جائے، اپنے خاندان والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی نسلوں کو رب کے حوالے کر دیں، رب کی حفاظت میں دے دیں۔ آج کہ میرے مولا تو ہی حافظ ہے، تو ہی حفاظت کرنے والا ہے، تو ہی سلامتی دینے والا ہے، اور ہم تیری امان میں ہی سب کچھ دے رہے ہیں۔ اللہ والوں، یہ بہت ہی زیادہ مضبوطی سے کام لینے والا وقت ہے، اور اللہ والوں آج یہ عمل خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں، اور چاند گرہن کی ویڈیو کو بھی جا کے دیکھیں، تاکہ اللہ رب العالمین ہم سب پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرمائے، کیونکہ یہ جو عمل ہے، یہ جو تسبیح آج آپ کو دی ہے رمضان کی 13 تاریخ دوسرے منگل کے دن، یہ بہت ہی خاص ہے۔ یہ آپ کا رزق بڑھائے گی، آپ کے لیے آسانی فرمائے گی، اور دعا اچھے انداز میں مانگیے گا، ادب والے انداز میں مانگیے گا، اس انداز میں مانگیے گا جس انداز میں دعا مانگنا اللہ پاک کو پسند ہے۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے ساتھ معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔